मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਗੀ शुरू ਕਰਨ जा ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਜਿਵੇਂ NTT, PTET, CTET ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ NTT ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ CTET ਅਤੇ PTET ਵਰਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਚਾਈਲਡ 0 to 6 years। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਧਿਕ, ਭਾਸ਼ਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਬਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਧਾ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਮੀਨਸ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੋਥ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸੈੱਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਮਤਲਬ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ। ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਮਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਦੇ ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਾਈਜ਼, ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਗਰੋਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿਕਾਸ। ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਮਾਈਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਇਹ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਵੀ
1 साल के बच्चे नूं कहिए कि कोई रिश्तेदार घरे आया तो चलो जाओ पानी पकड़ा के आओ, तो क्यों पकड़ाएगा? नहीं। ठीक है, 4 साल का बच्चा हालांकि फिर भी गिलास वगैरह चक सकता है। तो कोई भी कार्ज करन दी जो समर्था है उस विच चेंजिस होना, उसनूं की कह सकते हैं? विकास कह सकते हैं। और जो वाधा है वो की है? विकास का एक हिस्सा है। समय दे नाल नाल की है, जिवें जिवें वाधा होएगा उस विच की है, उस दे काम करन दी जो शक्ति है चेंज वो भी वधदी है। ठीक है, बच्चों दे। नैक्सट है प्रिंसीपल ऑफ ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। वैसे तो ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट के 8 तो 10 तक प्रिंसीपल्स होंदे ने, पर इत्थे आपां मेन जो मेजर प्रिंसीपल्स ने वो करांगे। फर्स्ट है सफेलो क्लाउड दिशा, सैकेंड है प्रॉक्सी मॉडिस्टल दिशा, थर्ड है जर्नल टू स्पैसीफिक। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट ने सफेलो क्लाउड दिशा ते प्रॉक्सी मॉडलिट दिशा है जो ये डायरैक्शन नाल संबंधित ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है सफेलो क्लाउड दिशा। इस विच की हुंदा है कि सिर तो लैके पूछ तक सफेलो क्लाउड दिशा की प्रक्रिया है। इसका अर्थ है कि ढांचे अते कार्ज विच सुधार पहला सिर के खेत्र विच आउंदा है, फिर तने विच ते अंत विच लत्तां के खेत्र विच आउंदा है। फॉर एग्जाम्पल जिवें कोई भी बच्चा है सब तो पहला की करेगा? बैठना शुरू करता है, फिर रिड़ना शुरू करता है, अते फिर खड़े होना जां तुरना शुरू करता है। ठीक है, तो इस विच की है जो डिवेलपमेंट है पहला सिर के हिस्से तो शुरू होंदी है अते बाद विच जो है लैग्स दे विच जाना शुरू करती है। ठीक है, इवें जिवें बच्चा पहला बैठना शुरू करता है, रिड़ना फिर जानी कि गोड्यां दे उपर आंदा है। ठीक है, तो फिर तुरना फिर की है पैरों के उपर जाता है। इसनूं सफेलो क्लाउड दिशा कहा जाता है। नैक्सट है प्रॉक्सी मॉडिस्टल दिशा। ठीक है, इस विच की हुंदा है जो ग्रोथ है या डिवेलपमेंट है केंद्र या मिडल तो लैके पैरीफेरी दिशा वल प्रॉक्सीमोडिस्टल विच विकास शरीर के केंद्री धुरी तो दूर तक जाता है। इस विच की हुंदा है जो विकास है केंद्र तो लैके पहला नेड़े वाले अंगां विच शुरू हुंदा है होना अते फिर बाहर वाले अंगां विच होना शुरू हुंदा है। जिवें फॉर एग्जाम्पल कोई भी बच्चा है सब तो पहला की करेगा? बावां हिलानियां सीखेगा। ठीक है, अते फिर उंगलां। ठीक है, ਜਾਂ कोई चीज़ है वो पहला बावां नाल चक्कन की कोशिश करेगा। ठीक है, अते बाद विच की है फिर हाथां नाल चक्कन की कोशिश करेगा। तो इसनूं की है प्रॉक्सी मॉडलिस दिशा कहा जाता है। नैक्सट है जर्नल टू स्पैसीफिक। ये तो सिंपल जी थिंग है जो आप हुण नर्सरी वाले बच्चों नाल कई डील करांगे तो आप सब तो पहला की उन्होंने जर्नल चीज़ां सिखाने की कोशिश करांगे ना, तो इसनूं समझना है जो बहुत जरूरी है। बच्चे समस्यावां दी तर्क करन अते हल करन लई अपने ज्ञान अते बोली दे हुनरां दी वरतों करते हैं। बच्चे पहला दोहां बाहां दी वरतों करके वड्डियां चीज़ां नूं संभाल सकते हैं, अगले हिस्से विच चीज़ां नूं एक हत्थ विच फड़न दे योग हुंदे हैं अते फिर छोटियां छोटियां चीज़ां जो हत्थां नाल चुकणियां शुरू करते हैं। ठीक है, तो जिवें हुण आपां नर्सरी के बच्चों ही लै लैंदे आ, तो सब तो पहला आपां की सिखाने उन्होंने? लाइनस लगानियां सिखाने ना। जिवें पहला स्टैंडिंग लाइन हो गई, फिर स्लैंडिंग लाइनस हो गई। ठीक है, तो पहला उन्होंने ये सिखाया जाता भी तुसीं सीधी लाइन किवें लगानी है, टेढ़ी लाइन किवें लगानी है। तो फिर हौली हौली की है अखरां दी बनतर वल वधदे आपां, है ना। तो एवें ही की है जो बच्चा पेंसिल फड़न दे योग हो जाता तो सब तो पहला की है बच्चा चक्कर लगाने शुरू करता है। ठीक है, फिर हौली हौली सीधियां लाइनां मार के वर्ग बनाना शुरू करेगा, तो फिर अगे जाके की है शब्द बनाना शुरू करेगा। ठीक है, नैक्सट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। एज अ टीचर आपां नूं की है वो फैक्टर्स का पता होना चाहिए जिहदे नाल की है बच्चे की ग्रोथ और डिवेलपमेंट ते असर पैंदा है। ठीक है, ताकि आपां नूं पता लग सके भी इन्हां दी ग्रोथ ते डिवेलपमेंट जिहड़े रुकावट पैदा हो रही है इन्हां कारकां नूं किवें दूर किया जा सके। ठीक है, इसलिए जिहड़े फैक्टर्स इसनूं प्रभावित करते हैं ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट नूं उन्हां बारे जानना बहुत जरूरी है। तो इस दे विच 3 तरह के कारक ने, जेनेटिक फैक्टर्स, जन्म तो पहलां दे कारक, जन्म तो बाद दे कारक। ठीक है, तो 2 तरह के आप कह सकते हैं मेन जिहड़े हुंदे जो ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट को प्रभावित करते हैं, नेचर ते नर्चर। नेचर वाले जिहड़े कारक है वो आपां नूं की है अपने माता पिता तो, ठीक है, जन्म तो मिलते हैं। नर्चर च की आ जाता है उसका पालन पोषण। ठीक है, जन्म तो पहला के कारकों में आप कह सकते हैं भी उस जिमें मदर नूं की खाण पीण मिल रहा है। ठीक है, उसकी किद्दां केयर हो रही है। जिमें कई मदर्स अल्कोहल की वरतों करते हैं। ठीक है,
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਲਿੰਗ, कि बच्चा मुंडा है या कुड़ी है। इसका भी बच्चे की ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट पर बहुत प्रभावित पैंदा, क्योंकि अज भी साडे समाज में देखा जाए तो मुंडे ते कुड़ी नाल हजे भी इक्को जिहा व्यवहार है जो नहीं किया जाता। ठीक है, तो लिंग का सैक्स का भी इस ते बहुत प्रभाव पैंदा। नस्ल अते कौमीयत। नस्ल किहड़ी रेस नाल संबंधित है। ठीक है, अज भी अपने इंडियन समाज में कह सकते हैं कि ऊच नीच जात पात इसका हजे भी मतलब इफैक्ट है। ठीक है, इसका भी की है वाधे और विकास से बहुत जो असर है पैंदा है। तो जन्म तो पहला दे कारक। जन्म तो पहला दे कारक विच सब तो पहला है माँ का कुपोषण। ठीक है, तो बहुत वड्डा प्रभाव पैंदा है कि जन्म तो पहला जो माँ नूं की डाइट मिल रही है, उसनूं खाने दी प्रॉपर खाना मिल रहा है जी नहीं, क्योंकि इस जो कंडीशन दे विच की हुंदा है सब तो ज़्यादा न्यूट्रीशनस की लोड़ हुंदी है। ठीक है, क्योंकि माँ की मतलब चंगी तरह सेहत लई और बच्चे की डिवेलपमेंट लई भी इस दे विच प्रॉपर न्यूट्रीशनस की इस स्टेज दे विच प्रॉपर न्यूट्रीशनस की लोड़ हुंदी है। नैक्सट है जनेपा की लाग। ये आप कह सकते हैं मैटरनल इन्फैक्शनस, जो मतलब जनेपे विच जो भी इन्फैक्शनस वगैरह होंदे आ उसका भी की है बच्चे की ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट पर प्रभाव पैंदा है। जनेपा पदार्थों की वरतों, इस दे विच आपां कह सकते हैं जी डिलीवरी टाइम कोई भी जिवें संद वगैरह बच्चे नूं लग जाता तो उसका भी की है पूरा प्रभाव पैंदा है। माँ की बीमारी, अगर कोई माँ नूं कोई बीमारी है, ठीक है, जन्म तो पहला बच्चे दे उसका भी प्रभाव पेगा। हारमोनस, फुटकल, फुटकल दे विच कह सकते हैं भी जिवें घर विच की माहौल है, माँ है जो फ्री माइंड है या नहीं। ठीक है, उसनूं कोई टेंशन तो नहीं, कोई स्ट्रैस तो नहीं। ठीक है, ये भी जिहड़े ने बहुत कारक ने जिहड़े बच्चे की डिवेलपमेंट ते प्रभाव पाउंदे ने। नैक्सट है जन्म तो बाद दे कारक। इस दे विच बहुत सारे कारक हैं, ये जो गिने चुने हैं वो मैं लिखे ने। तो फस्ट है विकास की संभावना। जिवें हुण एक बच्चा है वो बहुत वधिया उहदी इम्यूनिटी है, जल्दी बीमारियां जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक है, तो एक बच्चा जिवें है जिन्होंने बहुत ज़्यादा बीमार रहिंदा है, ठीक है, उसकी केयर भी जिन्नी मर्जी कर लो पर उन्होंने मतलब वो इम्यूनिटी सिस्टम ही एवें दा है कि वो मतलब जल्दी ठीक हो ही नहीं रहा। ठीक है, कई बच्चे बहुत एक्टिव होंदे ने। सैकेंड है पोषण। ठीक है, उसनूं किवें दा पोषण मिल रहा है जन्म तो बाद। ठीक है, ये भी उनकी ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट पर प्रभाव पाएगा। बचपन में कोई बीमारी हो जाती है उसका भी ओबवियसली प्रभाव पेगा। सरीरक वातावरण किवें दा मिल रहा, बॉडी स्ट्रक्चर, उन्होंने पूरा सरीरक फिजिकली फिट है या नहीं। फिफ्थ है मनोविज्ञानिक वातावरण, उस मनोविज्ञानिक तौर पर फिट है या नहीं। ठीक है, सिक्स्थ है सभ्याचारक प्रभाव। जिवें हुण आपां देख सकते हैं पश्चिमी सभ्याचार ते भारतीय सभ्याचार विच बहुत ज़्यादा फर्क है, तो फिर उत्थों की डिवेलपमेंट बच्चों की डिवेलपमेंट ते ग्रोथ च भी फर्क होएगा। समाजिक ते आर्थिक स्थिति, समाज किवें दे समाज विच रह रहे हैं आपां, उत्थों की आर्थिक कंडीशन किवें है, इसका भी पूरा प्रभाव पैंदा है। जलवायु अते मौसम। ठीक है, जलवायु ते मौसम का भी पैंदा है। खेडण अते कसरत, कई बच्चे हुंदे जिवें खेडदे ही नहीं, बिल्कुल पढ़ाई विच लगे रहिंदे हैं जां कई खेडदे ही रहिंदे हैं। ठीक है, तो उसका भी की है पूरा ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट पर प्रभाव पैंदा है। बच्चे का जन्म करम। जन्म करम किवें, जिवें आपां कह सकते हैं भी जिवें फस्ट बच्चा हुंदा है उसनूं बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर हुंदी है। ठीक है, उसका जिवें बच्चे का जन्म नंबर की है, 4th नंबर पर पैदा होया, 3rd नंबर पर पैदा होया। ठीक है, जिवें आपां कह सकते हैं सब तो वड्डे बच्चे नूं बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, तो कई बच्चे जिहड़े लास्ट वाले हुंदे जां सैकेंड वाले हुंदे उन्होंने कहंदे तां एवें ही है। ठीक है, इसका भी की है बहुत प्रभाव पैंदा है। बुद्धि, हारमोनल प्रभाव। ठीक है, नैक्सट है वाधा अते विकास के पड़ाव। वाधा अते विकास के पड़ाव, हुण आपां नूं पता होना चाहिए भी किहड़े बच्चा जिहड़ा पैदा हुंदा है तो अगों किहड़े पड़ावां विचों पैदा। तो सब तो पहला है नवजनक, न्यूनेट। ये हुंदा जन्म तो 1 महीने तक के बच्चे नूं आपां न्यूनेट बोलते हाँ। ठीक है, शिशु काल 1 महीने तो लैके 1 साल तक के बच्चे नूं दा जो काल हुंदा है वो शिशु काल हुंदा है। ठीक है, फिर है मुढ़ला बचपन, 1 तो 3 साल तक के बच्चे नूं मुढ़ला इसका मुढ़ला बचपन हुंदा है, इसनूं टॉडलर बोलिया जा सकता है। ठीक है, 4th है प्री स्कूल। इस एंटिटी विच इस पीरीयड नाल डील करना है। प्री स्कूल इस पीरीयड नाल एंटिटी विच डील करना है। ओके,
3 ਤੋਂ 6 साल तक के बच्चे, ठीक है। हुण प्री नर्सरी नर्सरी का मतलब की हुंदा है? नर्सरी जो आप किसी पौधे बीजते हैं तो सब तो पहला की तैयार की जाती है? नर्सरी का मतलब है कि जिमें कोई पौधा ही लै लो, ठीक है, उसनों पहला की उहदी नर्सरी तैयार की जाती है ताकि वह वधिया पौधा बन सके, ठीक है। तो इवें की है नर्सरी प्री नर्सरी का मतलब है कि स्कूल जाण तो पहला बच्चे नूं तैयार करना, ठीक है। उसनूं किवें आपां मतलब वह प्रॉपर डिवेलपमेंट हो रहा या नहीं हो रहा, वह माइंड विकास किवें है, ये सारा कुछ लिए उसनूं रेडी करना, ठीक है। स्कूल जाण तो पहला उसनूं रेडी करना, ठीक है। तो इसे जो मिशन लई जो सरकार ने जो एक नवी चीज़ शुरू की है प्री नर्सरी वाला एंटिटी वाला, ताकि उन्होंने पहला तो तैयार किया जा सके, ठीक है। नैक्सट है मिडल बचपन, स्कूल की उम्र 6 तो 12 साल। उत्तर बचपन किशोर 13 तो 18 साल के लगभग, ठीक है। तो ये सी साडा ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट का पहला पार्ट। सैकेंड पार्ट लैके जल्दी आवांगे। मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं मेरी वीडियो पसंद आई होवेगी। थैंक यू।